Hello students, welcome to lecture number 14 of aldehydes, ketones and carboxylic acid. As we know that at presently we are studying about the chemical reactions of aldehydes and ketones. But in the case of aldehyde and ketone, so we know that 6 different types of or 6 different categories of a chemical reactions in aldehyde and ketones. Out of these 6, we completed first is the nucleophilic additions reactions, and under the title of nucleophilic additions reactions, we completed additions of hydrogen cyanide, addition of sodium bisulfite, addition of Grignard reagent, and addition of alcohol. Then category 2. Category 2 is a nucleophilic additions reactions followed by eliminations of a molecule of water. In this title, we add derivatives of ammonia, right? And now the third one is the reductions reactions. So today we start with the reductions reactions, and we already know that the reductions of aldehyde and ketone gives alcohol. And we also know that the reductions of aldehyde gives primary alcohol and ketone gives a secondary alcohol in our prior portions when we studied about the preparations of alcohols, right? But once again, in a different method or in a different way, थोड़ा जरा हटके हम यहाँ पे रिडक्शंस ऑफ अल्कोहल समझना चाहते हैं. मैं थोड़ा आपको उसमें डिटेल में भी ले जाऊंगा क्योंकि आपकी बुक में नियर अबाउट 4 लाइंस इसके ऊपर लिखी हुई है, लेकिन मैं थोड़ा उसको ज्यादा एनलार्ज करना चाहता हूँ. So reductions of alcohols, we know that in the case of aldehyde, for example, if I having a RCHO, okay, aldehyde and ketone on reduction, right, which gives primary alcohol and secondary alcohol respectively. Okay, so reduction is carried out either the catalytically with hydrogen in presence of either nickel or platinum or palladium, or chemically with lithium aluminum hydride or sodium borohydride. So for example, if I perform the reactions with H2 plus nickel or platinum or palladium or lithium aluminum hydride or sodium borohydride, whatever the reducing agent. So it's converted into what? So it's converted into RCH2OH, and this is primary alcohol. This is primary alcohol and it's a aldehyde. This is aldehyde, okay? So aldehyde is reduced into primary alcohol. For example, if I give the example of a formaldehyde, so HCHO when reacts with hydrogen in presence of whatever, right? Nickel, platinum, palladium. So it's converted into what? So it's converted into methanol. This is methanol. So nothing new about it. We already know the idea of these simple reactions, right? Simple reactions. Okay. Same way in the case of ketone, when R double bond O reacts with hydrogen in presence of nickel or platinum or palladium, right? So it's converted into CHOH, and it's a secondary alcohol. It's a secondary alcohol. This is ketone. This is ketone. So with the example of this ketone, if we perform the reactions of this ketone with the example of a acetone, it reacts with hydrogen in presence of nickel or platinum or palladium. So it's converted into CH3. This is CHOH. This is isopropyl alcohol. This is acetone, and this is isopropyl alcohol. Isopropyl alcohol. I think so, nothing new about it. But for your informations and supplement your knowledge, so it presently starts with a different point. It's a supplement your knowledge. So with the help of this supplement of, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा उसको डिटेल में हम देखना चाहते हैं. ये जो टॉपिक मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं
और स्पेशली फॉर जेडब्ल्यू एज वेल एज नीट के लिए और जेडब्ल्यू के लिए मैं बढ़ा रहा हूं। बोर्ड जैसे गुजरात बोर्ड की एग्जामिनेशंस में इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। हमें मालूम है कि इट मे बी नोटेड दैट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ मच मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड, बट it not only reduce aldehyde and ketone, but it also reduce acids, acid chloride, esters, amide, nitriles, oxime, alkyl halide, alkyl azide, and nitro compound. Once again, what is the difference that we have to observe? We know that lithium aluminum hydride is a much more reducing agent than sodium borohydride. Okay, it reduces what? Acids, then acid chloride means RCOCl. Okay, then esters, then amides, nitriles, oxime, alkyl halide, alkyl azide, and nitro compounds. This is the significance of a lithium aluminum hydride. In contrast, sodium borohydride reduces only aldehydes, ketones, acid chloride, and alkyl halides. ये आपको थोड़ा आप अपने परिचय में रखिए, क्योंकि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट क्या इसका रोल है ना, वो आपको इसमें थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है मेरे पास, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO CH2 CH3। इसका हम नाम देखेंगे तो यहां से इथाइल हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ एस्टर कंपाउंड, सो इट्स अ इथाइल 4 ऑक्सो पेंटेनोएट। अब हम इसका दोनों तरह से रिड्यूस करना चाहते हैं। फर्स्ट वन हम रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड देन आफ्टर हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, सेम हम उसका रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सो इसमें क्या होगा, मेरे पास CH3 CHOH CH2OH हो जाएगा, क्योंकि यह एस्टर का भी रिडक्शन करता है, कीटोन का भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन कर सकता है, दोनों का कर सकता है। सो वी गेट अ प्रोडक्ट इज लाइक दैट, पेंटेन 1,4-diol. But in the case of this ethyl 4-oxopentanoate, when it reacts with a sodium borohydride, so it's converted into CH3COH. This is CH2, but it's a controlled reduction, right? So the name of this compound is ethyl 4-hydroxypentanoate, right? So what we have to observe, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने कीटोन है या एस्टर है, कोई भी है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कीटोन एस्टर है, और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कीटोन है, तो उसने दोनों पे रिडक्शन किया, राइट? लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड है, एस्टर के साथ नहीं जुड़ सकता है और सिर्फ कीटोन का ही करेगा। तो हमें कहाँ पे रिड्यूस करना है, कौन सी प्रोडक्ट में जाना है, सो हमें वो जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा।
नाइदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहां पे एक पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिए, नाइदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड reduces isolated डबल बॉन्ड्स। ये आइसोलेटेड का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट नहीं होना चाहिए, राइट, दूर दूर होना चाहिए। तो कोई भी डबल बॉन्ड होगा तो वो उसको रिड्यूस करेगा, राइट। Sorry, neither lithium aluminum nitride or sodium borohydride reduce isolated double bonds, but in the case of alpha beta unsaturated aldehyde, but in case of alpha beta unsaturated aldehydes and ketones हमें मालूम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड reduce only the C double bond O group, leaving the C double bond C intact, but sodium borohydride reduces both the C double bond O and C double bond C groups, giving a mixture of products in which C double bond O reduction product. Okay, so it's a single reduction product which is predominant over to the double reductions product of both the C double bond O and C double bond C. जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहता हूं, मेरे पास CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे भी CH और CHO है। देखिए आप यहाँ पे एल्डिहाइड और डबल बॉन्ड है, सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज but2ene1R। देखिए यहाँ पे भी हम दोनों पोर्शंस यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे फर्स्ट रिएक्शन से विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड and number 2 is a acidic hydrolysis, right? So CH3 CH double bond CH CH2OH। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में उसने डबल बॉन्ड पे कोई प्रोसेस नहीं की हुई है, राइट। बट जैसे हम इसका रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से चलेंगे, हम NaBH4 right, and then followed by the acidic hydrolysis। सो उसने क्या किया हुआ है? सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH भी लगाया हुआ है, और दूसरा CH3 CH2 CH2 CH2OH। जैसे ये 60% प्रोडक्ट है तो ये 40% प्रोडक्ट है, राइट। तो दोनों का मिक्सचर उसने बताया हुआ है। तो ये आपको आपकी पहचान में हो सके कि कहाँ क्या हमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमें यूज करना है। सिंपली मैं आपको बात आगे भी समझाना चाहता हूं। हावेवर catalytic hydrogenation reduces both the double bond and the carbonyl group simultaneously। वो दोनों करेगा। जैसे डबल बॉन्ड, जैसे मैं ये रिएक्शन है वो मैंने H2Na के साथ कराऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे मैं आपको बता कैटालिटिक रिडक्शंस में करवा रहा हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ H2Na एंड सम हीट एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड, सो इट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? दिस इज CH3 CH2 CH2 CH2OH हो गया। देखिए आपने पूरे दोनों तरफ से यहाँ पे जो रिडक्शन है वो हो सकता है। सो ये जो मेरा एक थोड़ा सप्लीमेंट्स है आपका नॉलेज में थोड़ा जो बढ़ाना चाहता था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड विद द हेल्प ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। सो जो ये रिडक्शंस है हम जो यहाँ पे देखना चाहते थे, तो उसका जो
जो सुझाव था कि हम कहाँ से कौन सा रिडक्शंस किस तरह से हम कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, दूसरा हम देखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक और रिएक्शंस है वो उसको डिटेल में थोड़ा पढ़ना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिडक्शंस, एक और रिडक्शंस भी है, जैसे आपकी बुक में उसने बताया हुआ नहीं है, एक और रिडक्शंस भी है, रिडक्शंस टू पीनाकोल्स, और समटाइम्स कॉल्ड एज एन बाई मोलेक्युलर रिडक्शंस भी उसको बोला जाता है। लेकिन वहां पे क्या होता है कि कीटोन्स ऑन रिडक्शंस विद मैग्नीशियम एमालगम एंड वाटर, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं भी उसमें थोड़ा इतना अच्छी तरह से हम उसको दिखाना नहीं चाहते। लेकिन मैंने आपको बोला था रिडक्शंस टू अल्कोहल्स एंड रिडक्शंस टू, अब दूसरा जो हम बता रहे हैं यहाँ पे वो जो है रिडक्शंस है, वो रिडक्शंस टू हाइड्रोकार्बन, रिडक्शंस टू हाइड्रोकार्बन। यानी हाल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शंस किस में हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन में हो जाएगा, राइट। तो द कार्बोनिल ग्रुप इन हाल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी रिड्यूस टू, यहाँ पे क्या होगा क्या, जैसे आपका कार्बोनिल ग्रुप है, सो वो कन्वर्ट से किस में हो जाएगा? CH2। दिस इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड एज एन मिथिलीन ग्रुप। दिस इज मिथिलीन ग्रुप एंड दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। This is carbonyl group, right? So reductions to hydrocarbon. In the case of reductions to hydrocarbon, your carbonyl compound is converted to methylene group. Methylene group. So the following methods are generally employed. First method is called as an Clemmensen reduction. Clemmensen reduction. Okay, so this involves the reductions of an aldehyde and ketone with a zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid. यहाँ पे मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास RCHO है और ये नेशेंट हाइड्रोजन है, वो डेवलप हुए हैं कहाँ से? तो जिंक मर्क्यूरी का जो एलॉय है उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया हुआ है, तो उसने हाइड्रोजन गैस जो है वो नेशेंट हाइड्रोजन उसने इवोल्व किया है, सो विच इज कन्वर्टेड इनटू RCH3 and H2O। ओके, सेम वे जैसे मैं इसमें एक दो एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। जैसे मेरे पास CH3CHO है, तो with the help of this zinc amalgam, right, in presence of hydrochloric acid, so it's converted into CH3CH3 and water. This is ethane, right? This is as ethanol। दूसरा मैं आपको कीटोन में बताना चाहता हूँ, CH3COCH3 है, जैसे उसने 4 हाइड्रोजन के साथ उसने रिएक्ट किया हुआ है, सो जिंक एमालगम के साथ हम उसका रिएक्शंस कराएंगे, सो CH3 CH2 CH3 प्लस H2O, सो इट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन। वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने जो आपको बताया हुआ है वो क्लेमेंसन रिडक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया हुआ है। माइंड वेल, Clemmensen reduction is widely used for the reductions of aldehydes and ketones which are sensitive to alkalis, जो अल्कली के साथ थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता है, राइट। तो वहां पे क्योंकि अल्कली में जैसे वो रिएक्शंस कर देगा, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस किसका है? एसिड का प्रेजेंस है। तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से ये देखना चाहता हूं, यहाँ पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहता हूं, जैसे Clemmensen reduction is widely used for the reduction of aldehydes or ketones which are sensitive to alkalis। फाइन। तो आपको ये जो यहाँ पे जो आपको क्लेमेंसन का एक आपका कॉन्सेप्ट मिल गया है। दूसरा जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो है सेम वही है, लेकिन उसमें थोड़ा उसका जो रिएजेंट्स है वो थोड़ा अलग किया हुआ है। दिस इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड एज वुल्फ किस्नर रिडक्शन।
In this method, the aldehyde or ketone is heated with a hydrazine, right? And KOH, or sometimes called as potassium tertiary butoxide in a high boiling point solvent such as ethylene glycol. जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मेरे पास है RCH डबल बॉन्ड O, जैसे मेरे पास मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास एल्डिहाइड है. सो फर्स्ट एल्डिहाइड इट्स रिएक्ट्स विद NH2 हाइड्रोजन के साथ, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था. तो मुझे पता है कि वो एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगा. सो फर्स्ट it gives such a type of product is called as an hydrazone. This is nothing but it's called as an hydrazone. And now this hydrazone is reacts with KOH in presence of glycol near about 200 degree centigrade temperature. So it's converted into RCH3 plus N2 is released. So this is alkane. Fine. तो आपको यहाँ पे पता चल गया अल्केन का. जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे कीटोन का देना चाहता हूँ. जैसे I have a CH3C double bond O CH3. Now with the help of this hydrazine followed by KOH in glycol at near about 200 degree centigrade temperature, 180 to 200 degree centigrade temperature is required, and now your carbonyl group is converted into methylene group and water is released. So it's a propane and it's a propanone. But we know that this Wolff-Kishner reduction is used when the carbonyl compound, the C double bond O, the carbonyl compound, right, are sensitive to acids. जो एसिड से ज्यादा सेंसिटिव होता है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे. बेस से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो अब हम कहाँ पे यूज करेंगे? क्लेमेंसन रिडक्शंस का हम यूज करेंगे. और भी कई मेथड है, जैसे हम उसका रेड फास्फोरस और हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ भी उसका जो हम रिएक्शंस करा सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे मैं स्टॉप हो जाता हूँ. क्लेमेंसन रिडक्शंस और वुल्फ-किश्नर रिडक्शंस में थोड़ा आपको क्लेमेंसन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शंस का भी एक कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पे मैं क्लेमेंसन यूज करूंगा, कहाँ पे मैं वुल्फ-किश्नर यूज करूंगा. आप भी देखिए, मैं अगली बार या मेरे थोड़ी वर्क प्रैक्टिस का रेफरेंस में मैं कुछ दूंगा ना, तभी मैं यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा कि वेयर वी हैव टू यूज अ क्लेमेंसन और वुल्फ-किश्नर. दोनों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर सभी जगह पे आप क्लेमेंसन और वुल्फ-किश्नर लगा दो, दोनों में से कोई भी चलेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. दोनों का एक स्पेसिफिक गोल है. तो हम कहाँ पे क्लेमेंसन यूज करेंगे, कहाँ पे वुल्फ-किश्नर यूज करेंगे. ओके, सो इसकी आपको पहचान होनी चाहिए, तो ही आपके पास वो जो टॉपिक है तो उसको आप डिटेल में समझ सकेंगे. तो आज हम इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे. थैंक यू.